Our school manager, respected Sister Mila Green, high school headmistress, Sister Lida, primary headmistress, Sister Pramila, supervisor, Sister Rebecca, Sister Jonah, Sister Amla, dear PTA members, teachers, and my dear students. I, Miss Sushila, I, Miss Pooja, are delighted to welcome you all to an extremely special morning assembly on the occasion of the 78th Independence Day. The theme for this year's celebration is Vikasit Bharat, reflecting the government's ambitious vision to transform India into a developed nation by the year 2047. हम हिंदुस्तानियों के लिए 15 अगस्त एक महज तारीख नहीं है। यह दिन हमें एहसास कराता है कि इस दिन के लिए धरती माँ के न जाने कितने सपूतों ने अपनी जान गंवाई थी और उन लाखों बलिदानों की कीमत पर हमें यह आज़ाद मुल्क मिला है। Before we dive into the festivities, let's take a moment to salute our nation. I would request chief guests and all the dignitaries to unfurl the national flag.
the management, I request you, ma'am, to proceed toward the platform. एक साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। To one and all present here. Today, we all have gathered here to celebrate our 78th Independence Day. I am highly honored and feel privileged to have been given the opportunity to welcome our chief guest of this very special occasion. Our school has always believed that the children are the future that will help in making our country great and encourage that idea. I am sure everyone will grow up to achieve success and will help in contributing to the betterment of society. I, on behalf of everyone present here, heartily welcome the dignity of the function today, the guest, Mrs. Ashwini Vicky Verma, who had studied from Fatima Convent High School, Kannad. I am especially thankful to her when we approached her and requested that she must be part of the event as the chief guest, and without any hesitation, she instantly agreed to be the part of the program. Studied from Fatima Convent High School, further she studied as a college. Mrs. Ashwini has done internship at Pune under Kale Associates. Every individual is talented in their way. Everyone has their area of interest, hobbies and passion. Scoring well in academics or being a topper in one thing, but the inner talent that everyone has is another. One should identify what their passion is and work accordingly despite any societal pressure. The stereotypes created by society have to be broken by the people living there themselves. That's what Mrs. Ashwini did. It's an honor for all of us to have you as our chief guest today, and for that we thank you, ma'am. I request our school manager, Sister Milagrin, high school and primary headmistress, Sister Lida and Sister Pramila, to felicitate our today's chief guest with the shawl and bouquet. आज आभाळी सजला नतमस्तक मी त्या सर्वांना ज्यांनी भारत देश घडविला प्रिय बालमित्रांनो आणि भारतीय नागरिकांनो, स्वातंत्र्य दिनाच्या 78व्या वर्धापन दिनाच्या उत्साहासाठी आपण सर्वजण येथे जमलो आहोत. सर्वांना शुभेच्छा व देशभक्तीवर 2 शब्द संबोधित करण्याची मला संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे विशेष आभार.
15 ऑगस्ट 1947 हा तो दिवस आहे जेव्हा आपल्या देशाला 200 वर्षाच्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले. आज आपण घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, भाषा स्वातंत्र्य दिले आहे व ते आपण मुक्तपणे उपभोगत आहोत. परंतु हेच स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेक थोर क्रांतिकारकांनी लढा दिला. अनेकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, ज्यात भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद, राजगुरू, महात्मा गांधी इतके की ज्यांच्या नावाची यादी संपता संपणार नाही अशा थोर महात्म्यास माझे भावपूर्ण विनम्र अभिवादन. आज आपल्याला स्वतंत्र देश मिळाला आहे, पण आज आपले काय कर्तव्य आहे? फक्त ध्वजारोहण करून, क्रांतिकारांना अभिवादन करून, राष्ट्रीय गीत गायन करून राष्ट्रीय सण साजरा झाला काय? तर नाही. आपणही राष्ट्राप्रती काहीतरी देणे लागतो. जसे देशातील तापमान वाढ बघता वृक्षारोपण करावे, परिसरात स्वच्छता करावी, भ्रष्टाचार करणार नाही व करून देणार नाही, अशा छोट्या मोठ्या गोष्टी भारत देशाला समृद्ध करतील व खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारी यांना श्रद्धांजली ठरेल. म्हणूनच मला म्हणावेसे वाटते की चला निर्णय घेऊया, चला निर्णय घेऊया, आपल्या देशाचे मूल्य जाणूया, प्राणांच्या बलिदान दिलेल्या वीरांना नमन करूया आणि त्यांच्या त्यागाचे स्मरण करूया आणि देशात सुधारणा करूया आणि देशात सुधारणा करूया. एवढे बोलून माझ्या अल्पशा संबोधनाला पूर्ण विराम देते व थांबते. जय हिंद. होऊ नका, सामर्थ्यवान बना आणि विश्वास ठेवा की देव नेहमीच तुमच्यासोबत असतो. शुभ सकाळ. आज आम्ही इयत्ता 7वी अ चे विद्यार्थी तुमच्यासमोर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त एक लोकमान्य टिळक यांचा जीवनक्रम सादर करणार आहोत. चला तर बघूया. ईश्वराने साक्षात जरी मला म्हटले मी तुला साक्षात मोक्ष देतो, तर मी झटकन म्हणेन मला मोक्ष नको. मला माझ्या देशाला या गुलामगिरीच्या बेड्यातून मुक्त झालं पाहिजे आहे. मित्रांनो, असा विचार करणारा हा महामानव म्हणजे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक होय. हाच तो महान पुरुष, स्वराज्यासाठी अजन्म आसुसलेला, स्वराज्य म्हणजे स्वराज्य पाळणारा आणि तो मिळवण्यासाठी अजन्म काया वाचा मनाने झटणारी थोर व्यक्ती म्हणजे लोकमान्य टिळकाचा जन्म 23 जुलै 1856 रोजी रत्नागिरीमध्ये चिखली या गावी झाला. चिखलातून कमळ जन्मावे, चिखलातून कमळ जन्मावे, परी जन्मले टिळक. लोकमान्य टिळक लहानपणापासून कुशाग्र बुद्धीचे होते. आत्मविश्वास आणि निर्भीडपणा हे टिळकांचे गुण होते. 1856 साली जन्मलेला हा महामानव उच्च शिक्षित तर होता, शिवाय एक थोर तत्ववेत्ता, लेखक तसेच संशोधकही होता. टिळक फक्त चांगले संपादक नव्हते, तर संस्कृत, गणित, भूगोलशास्त्र या विषयात चांगले अभ्यासक होते. जास्त पगाराची नोकरी त्यांच्या पायावर लोळून घालून उभी होती, पण हा मातृभक्त भलत्याच वेळाने झपाटलेला होता. त्याला वेळ होते स्वराज्याचे. ज्यांनी जन्मभूमीला या वेळेतून मुक्त करायचे, ज्यांनी जन्मभूमीला या वेळेतून मुक्त करायचे. वीर गवरले देशात आणि का आठवावे हे काही वावगे ठरणार नाही. स्वराज्याच्या वेळेपायी या मानवाने आपले घर, संसार, बायको, मुले सगळे सोयरे स्वराज्याच्या पुढे वाहून दिले. हे एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी, शिक्षण संपादक आणि लेखक होते. ते लाल, बाळ, पाळ्या त्रिकुटापैकी एक होते.
त्यांनी लोकांना एकत्र करण्यासाठी व जनजागृती निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव, शिवजयंती हा सण साजरा करायला सुरुवात केली. टिळकांनी केसरी व मराठा हे वृत्तपत्र सुरू केले. त्यातूनच त्यांनी जनजागृती करून समाजामध्ये स्वराज ही ज्वाला प्रज्वलित केली. 1896 रोजी महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला. टिळकांनी शेतकऱ्यांना संघटित केले व आपल्या केसरी या वर्तमानपत्राद्वारे त्यांनी सरकारला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. लोकमान्य टिळक यांनी एकदा त्यांच्या केसरी या वर्तमानपत्रात देशाचे दुर्दैव असा लेख लिहिला होता. त्यात ब्रिटिश सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्यात आला होता. म्हणून टिळकांना राजद्रोहाच्या आरोपावर अटक केली गेली होती. तरी ते शांत बसले नाही, तर त्यांनी गीतारहस्य असा महान ग्रंथ लिहिला. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच. असा हा थोर नेता 1 ऑगस्ट 1920 रोजी अनंतात विलीन झाला. त्यांना माझे कोटी कोटी प्रणाम. दिव्यत्वाची जिथे प्रचिती, तिथे कर माझी जुळती, तिथे कर माझी जुळती. असा महान नेता अधी न झाला, पुढे न होणार. लोकमान्य टिळक हे जग गरजच राहणार, गरजच राहणार, गरजच राहणार. स्वातंत्र्य दिनाचा धन्यवाद. My dear friends, my name is David Deepak Salvi. I am studying standard 4B. I am going to speak about Independence Day. First of all, I wish you happy Independence Day. Today is 15 August and we are celebrating 78th Independence Day of our country. On this day, 15 August 1947, India became independent from British rule. We honor the freedom fighters who fought our country bravely to make our country independent. Leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Rajguru, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, and more leaders. The fight for freedom with determination and given us to great democracy. On Independence Day, we remember the long battle that our freedom fighters fought and sacrificed that they had made. Let us pledge to work together to build a strong, prosperous, and just India for all. करे सलाम इस तिरंगे को जो हमारी शान है. करे सलाम इस तिरंगे को जो हमारी शान है. इसका सर सदा ऊंचा रखना जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में जान है. थैंक यू. जय हिंद. Student chief guest and all my dear friends, first of all I congratulate you for celebrating our Independence Day. As we all knew that we did not get our freedom easily. Great leaders such as Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Bhagat Singh, Rajguru has sacrificed their life for freedom. We must salute them for their work to our nation. Now it is our duty to protect our nation from enemies. We need not to go on borders to fight, but we have fight against enemies like corruption, pollution, addiction, selfishness and casteism. As Mahatma Gandhi told British, "Chale jao," we have to tell "Chale jao" to any kind of addiction. As Lokmanya said, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. We also say that हा माझा देश आहे आणि तो मी नीट ठेवणारच. If each and every person decide to do only his job with loyalty towards our nation, we can again be a great Indian. So on this occasion, let's decide to do our best for our country. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you Swaraj for your कहीं पर वतन से हसीन कोई सनम नहीं होता. पर वतन से हसीन कोई सनम नहीं होता. हीरो से समेट कर सोने में लिपट कर मरते हैं कहीं. हीरो से समेटकर सोने में लिपट कर मरते हैं कहीं. पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता. पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता. आज हम फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के छात्र इस तिरंगे को सलामी देते हुए
और आज 78वें स्वतंत्र दिन के मौके पर सभी स्वतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए, इस भारत माता के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हुए आज गीत गाने जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्र दिन की शोभा बढ़ाते हुए मिलकर गाए वंदे मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बयाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माए रंग दे बसंती चोला। एक तेरा नाम है साचा, ओ एक तेरा नाम है साचा, मन मेरे आने बाचा, बस नाम तेरा माँ। ओ एक पहचान मेरी तू ही, जिंदा जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। ओ तुझ पे वारना सो वर जान में, तुझ पे वारना सो वर जान में, तेरी कुर्बान मेरी माँ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। आ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क भरे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जो मोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की
उत्तरं तत्समुद्रस्य हिमालयस्य व दक्षिणं तथा भारतम नामम भारतीय संतति, अर्थात हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में हिमालय है तो दक्षिण में समुद्र, और हम सभी यहाँ रहने वाले भारतीय इस भारत देश की संतानें हैं। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। सरलता की मूर्त आदरणीय प्रधानाचार्य श्री सलीला, पर्यवेक्षिका श्री सरबेका, मैनेजर सिस्टर मीला ग्रीन, अतिथि महोदया, अध्यापक वर्ग तथा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैष्णव यादव 10वीं कक्षा की छात्र अपनी देशभक्ति को मेरे वक्तृत्व द्वारा साझा करना चाहूँगी। सर्वप्रथम सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। मैं अपने विचारों की शुरुआत करना चाहूँगी 1913 मार्च की उस रात की बात के साथ, जब मात्र एक 23 साल के जवान स्वतंत्र सेनानी कांग्रेस फांसी की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आज़ाद करना था। फांसी के कुछ समय पहले उसकी माँ उससे मिलने आती है। एक माँ और एक बेटे में आखिरी बातचीत हो रही थी। वह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता एवं साहस की कहानी थी। माँ को पता था कि बेटे को फांसी होना निश्चित है। नवयुवक अपनी माँ का हाथ थाम कर कहता है कि माँ, मुझे पता है ये निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने अपने देश के लिए जीने मरने की कसम खाई है और आज वही दिन है। माँ कहती है कि बेटा, गर्व है मुझे तुम पर, तुम जो कर रहे हो वो सभी नहीं कर पाते, लेकिन कितनी सोनी होगी ये दुनिया तेरे बिना। कैसे कैसे मैं उन हाथों से तेरा शरीर उठाऊंगी जिन हाथों ने बचपन में तुझे खाना खिलाया था। नवयुवक अपनी माँ की निराशा को चीरते हुए कहता है कि माँ, मुझे खोने की फिक्र मत करो, क्योंकि मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे। क्योंकि अगर आज एक भगत सिंह ने बलिदान दिया तो कल लाखों, करोड़ों, हजारों भगत सिंह बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे और इस भारत देश को आज़ाद बनाएंगे। ऐसे ही बिपिन चंद्र पाल, एम मुंशी, मंगल पांडे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, नाम अगर मैं बोलती रहूं तो शाम बीत जाएगी, लेकिन ये नाम कभी खत्म नहीं होंगे। हमारे परम पूजनीय आदर्श स्वतंत्र वीर सावरकर जी कहते हैं कि देह और देव के बीच में देश आता है और उस देश का हम सभी को कुछ देना लगता है। मुझे आज यहाँ देशभक्ति को दर्शाने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन आखिर देशभक्ति या फिर कहूँ तो पेट्रोटिज्म आखिर क्या है? महाराज, आधी जन्म कोंढाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाचं। जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को अपने कंधे पे उठाते हैं तो वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति को राष्ट्र में समर्पित कर देते हैं तो वो है असली देशभक्ति। जो भगत सिंह जैसे स्वतंत्र सेनानी ने किया वो है असली देशभक्ति। या फिर तो कहूँ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट, यही भावना है देशभक्ति। हमें ये आज़ादी दान में नहीं मिली दोस्तों, बल्कि इस भूमि के कई इश्कवीरों ने अपना खून इस देश को देके कमाई है। और मैं अपनी इसी देश के शान में गर्व से कहती हूँ कि वो देश जहाँ अशोक जैसा राजा हुआ था, वो देश जहाँ 50-50 मील पे रूप पहनावा मजहब बदल जाता था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियों को पाया था, वो देश जहाँ मैं अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। भारत माता की जय अक्सर हम बड़ी शान से कहते हैं, लेकिन क्या भारत इस शब्द का अर्थ जानते हैं? भारत शब्द का अर्थ इंडिया नहीं साथियों, भारत संस्कृत के दो धातुओं को मिला के बनता है, भा और रथ। भा का मतलब है प्रकाश, जहाँ भी भा आता है वह प्रकाश संबोधित होता है, जैसे भानु, भास्कर, प्रभात आदि। और रथ का मतलब है लगा हुआ, जुटा हुआ, जैसे शिक्षा रथ, साधना रथ, तपस्या रथ। तो जो प्रकाश की खोज में रथ है वही मेरा और हम सभी का भारतवर्ष है। मुझे भारत के बारे में तब ज़्यादा पता चला जब मैंने बाकी देशों के बारे में जानना शुरू किया। मैंने ये जाना कि स्विट्ज़रलैंड की बर्फ़ जम्मू कश्मीर में, ब्राज़ील लेक्सोटो की बारिश चेरापूंजी में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दलदल ओडिशा बंगाल में, अफ्रीका का रेगिस्तान सहारा जैसलमेर में, चंचलाती धूप कर्नाटक के कुर्ग में, दुनिया के सबसे सुनहरे जंगल डेकन ट्रैक में। सब कुछ है इस देश में। मैंने ये जाना कि जहाँ बाकी देशों में 2 से 3 जलवायु है, वहाँ भारत में 16 जलवायु प्रकार है। और शायद इसीलिए भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है।
ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और हर कंकर शंकर है। जिएंगे तो इसी के लिए और मरेंगे तो भी इसी के लिए, और मरने के बाद भी हमारी गंगा जल में प्रवाहित हो रही अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मुझे ये अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और अपना भाषण समाप्त करते हुए अपने देश के गौरव में 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा, हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशों को भी अपने ब्रदर सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद।
जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। प्यार बाज हम, चाल साज हम, इश्क बाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, हम जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले।
happy Independence Day. It's an honor to be back to the school on this special Independence Day. My this reminds me my days of the school and the events happening in the school. I would not take much time. I would just thank everyone and tell the PTA members that the students are in the safest hands they could be, because the school base has helped me a lot for my future career. Standing in front of the students of the other school, I would stand out. This had made me, given me the confidence by the teachers, that the discipline which teachers have gave me, it's outstanding. This now they won't recognize the importance of the school right now because they are in the campus. When they'll step out for further education and they'll stand out in front of others, they'll realize this base what they have got in this school. And about Independence Day, I won't take much time. I just want to say, be aware of the environment and be protective for your brothers and sisters as the events happening outside right now. I would like to say girls to be self-protective and the boys to protect them and be self-aware of what's happening around you. Thank you. Good morning, today's Chief Guest, Mrs. Ashwini Verma, sisters, PTA members, teachers, parents, and my dear students. Are all here? Good morning, students. Are you tired? Okay, our students are tired. Today we celebrate 78th Independence Day. And this is indeed an auspicious day for all of us. We were under the rule of British, but now we are freed. We are freed from our slavery. Today we celebrate our country, and the second one is the Assumption of our Blessed Virgin Mary into heaven with her body and soul. Dear students, this celebration indeed remember or take us back of our freedom fighters, what they have done for our country, and Mother Mary, who really stood pure, holy, and prayed for all that was evil in this world. The evil that is removed from this earth by Mother Mary by giving Jesus to our country and for the whole world. And so also freedom fighter, all the freedom fighters have really fought for our country, and today we are freed country. We breathe this freedom with delight. Without taking much time, dear students, I say always be grateful to your parents, because you have come into this world because of your parents, and it was God's creation that you should be here in this world. Take care, as our guest said, take care of our environment, and we all need to be protective. We have to defend ourselves and our country. At last, I would like to say, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Jai Hind, Jai Bharat. And my dear all students, it's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contributions of those who have worked very hard to make this event successful.
guidance, and valuable prayers for the success for our every program. A special thanks to our respected principal, Sister Lida, for her systematic arrangement that stimulated us to do our best with a deep sense of appreciation. We also are grateful to our primary headmistress, Sister Pramila, and supervisor, Sister Rebecca, for their timely guidance. We thank our loving teachers for their untiring efforts. Finally, I would like to thank our budding staff that made this event